देखो बच्चों, क्या बहुत डिफरेंस लग रही है। देखो अरे आसान है, ठीक है ना, देखो ये डीप हो गया। लेट देयर बी, देखो let there be two parallel rays let there be two parallel rays incident on mirror ठीक है ना। let there be two parallel incident on mirror mn at points a and c at points on mirror mn at points a and c. Let there be two parallel rays incident on mirror mn at points a and c. ठीक है, at angle I, at angle I, अभी डायग्राम में बनाया जाना इसको, at an angle I, ठीक है। Common perpendicular on these two rays, common perpendicular on these two rays, common perpendicular on these two rays will be our incident wavefront AB. Common perpendicular on these two rays will be our incident wavefront AB. ठीक है ना, common perpendicular ड्रॉ किया था ना बच्चों, ये क्या था तुम्हारा incident wavefront AB. So points A and B are in same phase. So points A and B are in same phase. ठीक है, और incident wavefront पर है ना, तो क्या है same phase. Let time taken by wave to go from B to C is t. Let time taken by wave to go from B to C is t. Time taken by wave to go from B to C is t. Let speed of wave in medium, time taken by wave to go from B to C is t. Let speed of wave in medium equal to v. Let speed of wave in medium equal to v. ठीक है, so BC कितना होगा बच्चों, so BC equal to VT, so BC equal to VT, so BC equal to VT. in this time wave reflected at A, in this time wave reflected at A travels same distance, in this time wave reflected at A travels same distance, ठीक है, travels same distance. Let wave is reflected at A, let wave is reflected at A at an angle R. Let wave reflected at A at an angle R. Let wave reflected at A at an angle R. Wave incident at C. Wave incident at C will be also reflected at same angle. Wave incident at C will be also reflected at same angle. सिमेट्री से कह सकते हैं ना, राइट, दोनों रेस पैरेलल है, अगर यहाँ पर आर है ए पर तो बी सी पर भी क्या होगा आर
wave incident at C will be also reflected at same angle R. ठीक है, लिख लिया. Let's draw an arc of length VT from A. Let's draw an arc of length VT from A. Let's draw an arc of length VT from A. It cuts reflected ray at D. 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 फिर से बोल दे रहा हूँ. Let's draw an arc of length VT from A. ठीक है, यहाँ तक लिखिए. It cuts reflected ray at D. तो AD क्या होगा बच्चों? VD. तो लिख लो. So AD equal to VD. So AD equal to VD. If we join C with D, if we join C with D, if we join C with D, it will represent reflected wavefront. If we join C with D, then CD will represent, if we join C with D, then CD will represent reflected wavefront. ठीक है, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर लिख लेना इसमें. अरे यहाँ पर लिख लेना. ये AB क्या बच्चों तुम्हारा? अरे दिखा देना इसमें. ये क्या बच्चों? इंसिडेंट वेवफ्रंट. अरे लिखा. और ये क्या दिखा देना? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. ये ED है बच्चों. रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. और यहाँ पर इन दोनों को क्या दिखा देना बच्चों? ये दोनों क्या है तुम्हारी? इंसिडेंट रे. अरे क्या है? इंसिडेंट रे. और चार तो दिखा देना है तो ठीक है ना. चार का रिफ्लेक्टेड रे भी दिखा देना. कलरफुल डायग्राम लगे. अच्छा सा. कलरफुल बनाने में ना थोड़ा और भी गड़बड़ लगने लगता है. ज्यादा कलर हो जाते हैं फिर वो. रंगोली फील्स. अरे ठीक है. अरे आई बात समझ में. सिर्फ इतना सा ही समझना. इसके बाद बहुत ही आसान है. डायग्राम बनाना सीख लिया. इसके बाद एक लाइन है बच्चों. देखो बच्चों, मैं ट्राइंगल्स को अलग बना रहा हूं. ध्यान देना. छोटा कर. देखो, अरे सुनो. ट्राइंगल ABC में देखो. ट्राइंगल ABC अभी लिखना नहीं बच्चों. इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल कहां पर बन रहा है बच्चों? ये क्या है? A. ये क्या है? B. ये क्या है? C. देखो यहाँ पर. अरे सुन लो भाई, ध्यान से समझ लो. अरे इम्पोर्टेंट है. ये पर देखो बच्चों, ये नॉर्मल है नहीं है? और ये तुम्हारा क्या था? आई था. ये क्या बच्चों? 90. अरे 90 है ना. ये आई, ये पूरा 90 थी. कितना होगा? 90 माइनस आई. और ये भी पूरा 90 है. ये कितना होगा? कैसे समझ लो. ये क्या बच्चों तुम्हारा? आई. देखो वेवफ्रंट इसीलिए बताया था ना, पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों. वेवफ्रंट क्या होता है? इंसिडेंट रेस के परपेंडिकुलर. तो ये भी तुम्हारा वेवफ्रंट था ना. तो ये क्या होगा? इंसिडेंट रे के
परपेंडिकुलर, इसीलिए होता है परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। और इसीलिए मिस करते हो इस बात को। ये क्या है बच्चों 90 डिग्री। अगर ये समझ रहे तो पूरा फिगर भी नहीं बना पाओगे, एंगल भी नहीं बना पाओगे। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आई, ये कितना होगा बच्चों 90 माइनस आई, और ये एंगल भी क्या है 90, ये कितना होगा। अरे आई बात समझ में। और ABC के बाद ABC में देखो कहां पर बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहां पर है डी पर। अरे यही है ना बच्चों, ठीक है डी पर ही है ना, देखो ABC दिख रहा है। ये वाली इंसिडेंट रे थी, याद है कि नहीं याद है, याद है। और ये वाली क्या है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। CD क्या था बच्चों तुम्हारा, कौन सा वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड। अरे कौन सा वेव फ्रंट था, रिफ्लेक्टेड। ये एंगल कितना था R। CD रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था तो रिफ्लेक्टेड रे पर तो परपेंडिकुलर होगा ही। अरे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था ना, तो रिफ्लेक्टेड रे पर क्या होगा परपेंडिकुलर। ये R, ये पूरा 90 थी, कितना होगा बच्चों ये 90 माइनस, और ये कितना होगा R। बस इतना हो गया, बस एंगल बदल गया बस, ठीक है बस काम खत्म। टाटा बाय बाय। हां खत्म हो गया। हाँ देखो देखो एक तरीका होता है कन्वर्जेंस प्रूव करने का, ठीक है। हाँ एक दूसरा उससे आसान भी तरीका है। देखो साइन आई क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन आई क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अरे भाई क्या लिख सकते हो BC, अरे भाई आई के सामने परपेंडिकुलर हो गया ना, अच्छा ओके BC बाई AC। BC क्या बच्चों तुम्हारा VT एक नहीं है, अरे है ना, अरे देखो लिखा था ना B से C कितना टाइम करता है, B से C में T टाइम लगता था, BC कितना हो गया था VT। साइन R क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या लिखोगे R के सामने क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर, क्या होगा AD बाई AD क्या था बच्चों, अरे VT था ना, अरे क्या था VT, तो VT बाई AC। अरे जो भी तुमको दोनों बता दे रहा हूँ। अब देखो साइन आई और साइन आर क्या है इक्वल, तो अक्यूट एंगल के लिए हम कह सकते हैं अक्यूट एंगल का है तो I इक्वल टू R, ठीक है लिख वैसे भी इक्वल टू R। अरे तुमको कहां होता था प्रूफ कर रहे थे ना, अरे तो प्रूफ करके था अरे लिख लो इसको, अरे लिख लो भाई, ठीक है ना, अरे लिख लो भाई, पहले साइन आई लिखना फिर साइन आर लिखना। दूसरा तरीका ही बता दे रहा हूं मैं, लिख लिया सर।
यहाँ पर इसको 1 मान लेना, इसको क्या मान लेना? सर जी प्रूफ करते टाइम मतलब जब एग्जाम प्रूफ करेंगे तो अलग से ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है ना? हाँ नहीं बनेगा, बना देना अच्छी बात है। अरे मैं उसी में क्या समझ में नहीं आता। देखो कैसे हो गया? अरे भाई हो गया भाई, ठीक है लिख लो फ्रॉम 1 and 2। अरे ये क्वेश्चन को नंबरिंग दे दो 1 and 2, ठीक है? देखो फ्रॉम 1 and 2 sin i equal to sin r, so I equal to r, ब्रैकेट में लिख देना और acute angle फ्रॉम 1 and 2 लिख दे रहा हूँ मैं, नहीं और acute angle क्या लिख दिया? ठीक है देखो बच्चों, इसको RHS से भी कर सकते हो, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। RHS कॉन्ग्रुएंस जानते हो क्या? RHS कॉन्ग्रुएंस जानते हो? हाँ सर। यस सर। देखो मान लो दूसरा सुन लो भाई, दूसरा तरीका है जो ज्यादातर यहाँ लिखा गया है। क्या है बच्चों? देखो एंगल बी क्या है तुम्हारा? 90 डिग्री है, और AC बराबर क्या है बच्चों आपका? CA कहते हैं। क्यों कहोगे AC बराबर CA? AC बराबर AC क्यों नहीं कह रहे? AC बराबर AC क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि मैं ऐसे देख रहा था उसमें से, ऐसे नहीं लिख रहे। एंगल चेंज है ना, करेस्पॉन्डिंग साइड्स AC से वही तो बोल रहा था। देखो जो यहाँ पर सुन लो, यहाँ पर B है वही यहाँ पर D है। BC बराबर क्या है तुम्हारा? AD है। BC बराबर क्या है? AD। तो बच्चों जो यहाँ पर C काम कर रहा है ना, वही यहाँ पर क्या कर रहा है? A काम। इसलिए क्या लिखे यहाँ पर? BC बराबर C। हाँ टेक्निकली गलत है, हालांकि नंबर नहीं काटेगा इतने स्टूडेंट्स के लिए, बट AC बराबर क्या है? D है, ठीक है? और बच्चों क्या है तुम्हारा? AB बराबर क्या है तुम्हारा? सॉरी AD बराबर क्या है? BC। ये RHS कॉन्ग्रुएंस होती है, क्या कहते हैं? ठीक है ना? अगर हाइपोटेन्यूज सेम है और वन ऑफ द साइड सेम है तो क्या होगा? दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या होगा? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है बच्चों ट्रायंगल ADC के, तो क्या होगा? I इक्वल टू आर भी बराबर। देखो यहाँ पर बच्चों देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं ना, और यहाँ पर A पर क्या बन रहा है? I। यहाँ पर A पर I नहीं बन रहा, यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है? C पर। I इक्वल टू क्या बच्चों तुम्हारा? R। तो क्या हो गया? अरे ठीक है आ गया मुझे समझ में। अब चाहे तो पहला वाला यूज कर लेना sin i इक्वल टू sin r, या दूसरा वाला यूज कर दो भी। अरे दोनों भी ठीक ही है, सेम सेम है सर, ठीक है? हाँ जो भी चेंज कर दे स्लाइड। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया? यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चों सुरेश भाई जग रहे हो? ठीक है हेडिंग डाल लो प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन। हेडिंग डालो बच्चों प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो इसी पर बेस्ड है बच्चों। अरे ये भी है प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन on basis of Huygens principle. Proof of refraction on the basis of Huygens principle. ठीक है बच्चों? और इसको समझ लेना, ये लास्ट पार्ट में इसकी है, ठीक है? ये मान लो तुम्हारा अभी मिरर लेंगे नहीं, मान लो बच्चों दो मीडियम है, एक तो क्या है N1, दूसरा क्या है N2। इसमें जो बच्चों स्पीड होगी V, V1 कह दो क्या होगी? C बाई
अरे v इक्वल टू c बाई n होता है ना, क्या होगी c बाई n1, और इसमें क्या होगा v2 c बाई n1, ठीक है, ज्यादा क्लियर है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा इंटरफेस है। अभी भी क्या करेंगे बच्चों, कैसे रेस इंसिडेंट कराएंगे, पैरेलल, कैसे रेस इंसिडेंट कराएंगे, पैरेलल। ये फिगर आसान हो क्योंकि बच्चों इसमें रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना, तो दूसरा पैरेलल नीचे बनेगा। हाँ वो ये अच्छा होता है, अच्छा डायग्राम होता है। देखो ये बच्चों कहां पर इंसिडेंट है, ए पर, दूसरा क्या है, सी पर। तो इंसिडेंट वेवफ्रंट के सीमा से आप बात नहीं समझ लो। वेवफ्रंट के लिए क्या करेंगे बच्चों, ए से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और दोनों पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया बच्चों, जो आपका रेस पर परपेंडिकुलर होता है क्या कहते हैं उसको, वेवफ्रंट। वेवफ्रंट होता है ना, वेवफ्रंट क्या होता है, रेस, इंसिडेंट रेस के परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया बच्चों, इंसिडेंट वेवफ्रंट। अब यहाँ पर देखो क्या होगा बच्चों, रेस रिफ्लेक्ट थोड़ी होगी, क्या करेगी, रिफ्रैक्ट। तो ये क्या हो गया मान लो तुम्हारा आई, और यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, लिख लेना चाहे तो n2 बड़ा है, उससे बड़ा भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर टेंस से मतलब नॉर्मल की ओर मुड़ रहा है ना, इसीलिए कह रहा है। अरे उधर भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, चाहो तो लिखो चाहे ना लिखो। ये बच्चों क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब बताओ रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट कैसे बनाएंगे, सोचिए बताओ कोई, सॉरी रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। हाँ बी से सी बच्चों, मान लो जाने में कितना टाइम लगा, t, तो बी सी कितना हो जाएगा, d1t। अब जितने टाइम में बच्चों वेव, देखो शुरुआत में दोनों तो यहाँ पर था, तो ये क्या था, दूसरी वेव यहाँ पर थी। जब जितने टाइम में ये बी से सी पहुंचा, उतने टाइम में ये वेव कितना ट्रेवल करेगी बच्चों, अभी ध्यान देना, स्पीड डिफरेंट है, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। अभी इसमें v1t ट्रेवल की, तो टाइम में कितना ट्रेवल करेगा, v2t, और इसमें स्पीड क्या बच्चों, v2। तो क्या करोगे, v2t लेंथ का r खींचो, अरे ये कर रहे थे ना उसमें, क्या करोगे इस पर मिला दोगे, 90 डिग्री है ना बच्चों टेंजेंट, तो इस पर भी क्या होगा 90 डिग्री। CD क्या हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा वेवफ्रंट होगा, V2T। हाँ अरे यार मजाक में उड़ाओ, बोला ही नहीं, साल भर में बोला एक बार। AD क्या हो जाएगा, सॉरी आपका CD क्या हो जाएगा, कैसा वेवफ्रंट, रिफ्रैक्टेड, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। डायग्राम बना लो बच्चों, ये ठीक ठाक बना है, लाइट कलर्स का यूज किया, अच्छा लग रहा है सर। डायग्राम बना लेना, और भाई उसमें लिख भी देना, CD क्या है, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, मैं लिख दे रहा हूं भाई, भरोसा नहीं, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट तेरे से नहीं है दोस्त। वेवफ्रंट ये क्या बच्चा तुम्हारा, अरे पढ़ लो पहले, क्या अगर नहीं लिखते तो नहीं बनाते तुम, तो मेरी मर्जी है, 2 बिना यार, ये मेरा अधिकार है, ठीक है, जज कैसे करना है। सर ये एक अधिकार है। क्या बना लिया, बना लिया,
बना लिया भाई सभी ने? ठीक है, लिखो। let there be two rays, let there be two parallel rays, let there be two parallel rays incident, हाँ इसके नीचे, let there be two parallel rays incident at an angle I, at an angle I on interface of two media, on interface of two media, on interface of two media having refractive indices N1 and N2, having refractive indices N1 and N2, having refractive indices N1 and लोग क्या करेंगे? sin N1 sin I equal to N2 sin I, ये प्रूफ कर दो। स्नेल्स लॉ था ना बच्चों रिफ्लेक्शन का, क्या था? N1 sin I equal to N2 sin I, ये प्रूफ और आराम से हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों आपका, लिख लिया? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस N1 and N2। उसके बाद लिखो velocities of light in medium 1, velocities of light in medium 1 equal to v1, velocity of light in medium 1 क्या होगा बच्चों, v1 equal to c by n1, velocity of light in medium 1 v1 equal to c by n1, velocity of light in medium 2 v2 equal to c by n2, velocities of light अच्छा बच्चों रिफ्रैक्शन होता क्यों? ये रीजन बताया था ना सर पार्टिकल पास पास होता है डेंसर मीडियम में भी हाँ वेरिएंट स्पीड से इसका नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं ना, टेंशन सर इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं टेंशन मीडियम में, से डेंस हो जाता है ना मीडियम, तो उसमें पार्टिकल भी उसके इतने पास पास रहेंगे तो फिर वो कोई भी होता फिर भी होता ना। हाँ सर मतलब डिफरेंस अगर होगा तो फिर वो बेंड या अंदर जाएगी ना। देखो सुन लो, हाँ सुन लो, वास्तव में रीजन क्या है कि डिफरेंट मीडियम में स्पीड क्या होती है, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट मीडियम में स्पीड डिफरेंट होती है। अभी इसका भी कराऊंगा ना अभी उसमें दिख जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों क्या लिखो, अरे क्या लिखिए, हाँ तो लिखो v1 equal to c by n1, v2 equal to c by n2। लिखो कॉमन परपेंडिकुलर AB, common perpendicular AB will represent incident wave front, AB will represent incident wave front, common perpendicular लिख लो तुम, अरे उसमें थोड़ा कॉपी से कुछ प्रयास तो किया करो, तुम हार मान लेते हो। common perpendicular AB will represent incident wave front, आगे लिखो let time taken by wave to go from B to C is t, let time taken by wave to go from B to C is t, C, अरे B से C जाने में, अरे बताया था ना पिछली बार भी, हाँ B to C is t, so BC equal to क्या होगा बच्चों, BC equal to V1t, so BC equal to V1t, ठीक है, लिख let wave refracted at an angle r, let wave is refracted at an angle r, refracted at angle r, distance traveled by refracted ray, distance traveled by refracted ray in same time, distance traveled by refracted ray in same time is v2t, distance traveled by refracted ray in same time is v2t,
ठीक है, लिख लिया है ना? तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीचे से ले सकते थे। अरे सर आपकी लॉजिक से लिखना टेंशन मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं क्यों टेंशन, ये तुम्हारा है। वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ, लिखो, अरे लिखो भाई, बात नहीं कीजिए। वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ V2T on refracted ray. We draw an arc of length V2T on refracted ray. Length V2T of length V2T on refracted ray. It cuts refracted ray at D. It cuts refracted ray at D. CD will represent refracted wavefront. CD will represent refracted wavefront. CD will represent refracted wavefront. ठीक है, देखो देखो बच्चों, सो AD इक्वल टू लिखो, क्या होगा बच्चों? सो AD इक्वल टू V2T. सो AD इक्वल टू V2T. ठीक है, सो AD इक्वल टू V2T. देखो बच्चों, इसमें दो ट्रायंगल अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में देख सकते हो। ठीक है, इसमें आराम से दिख रहा है आपको। अच्छा सुनो, देखो बच्चों, क्या होगा, ये आई है, ये क्या बच्चों कितना एंगल है? 90, तो ये कितना होगा? 90 माइनस, ये कितना होगा? आई। तो साइन आई क्या लिखोगे बच्चों? ये 90 डिग्री है ना, साइन आई क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल V1T upon AC. साइन आई क्या लिखोगे बच्चों? V1T upon AC. V1T अपॉन AC. हाइपोटेन्यूज क्या है? AC. अरे लिखा ना, ये भी लिख रहे हैं ना, BC अपॉन AC, या V1T। और इन ट्रायंगल बच्चों देखो, ये R है सर, देखो ये R होगा। देखो एक मिनट, और 90 प्लस R होगा, 90 प्लस R होगा। यहाँ पर बना लेना बच्चों डायग्राम। ये क्या है तुम्हारा? R। ये रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट तक नहीं है बच्चों CD। अरे CD क्या तुम्हारा? रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, मतलब दोनों पर परपेंडिकुलर है। अरे है ना, ये एंगल क्या बच्चों तुम्हारा? 90 डिग्री। सर ऐसे कर लो ना, इधर से ऐसे होता नहीं जी, सर इधर से कर लो ना, इस तरफ वाले से। अच्छा सही है सही है सही है। ऐसे ही होता है। इधर से कर लेते ना। देखो ये R है बच्चों, ये पूरा क्या तुम्हारा 90, तो ये कितना होगा? 90 माइनस, तो ये कितना होगा? इधर से कर 90 प्लस R इक्वल्स टू हाँ। 90 प्लस या ऐसा देख लो, सही कह रहा है ऐसे कहना चाहते ये R, तो ये कितना होगा? 90 नहीं, हाँ चलो, ये R है, कितना होगा ये? 90 माइनस R, अरे होगा ना, ये 90 है, तो ये कितना होगा बच्चों? अरे उससे भी कर सकते थे, पहला तुमको ये दिखाना नहीं है कि R हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया? क्या यहाँ से कर सकते हो यार? ये R, तो ये 90 माइनस R, ये 90 है बच्चों, तो रिमेनिंग क्या होगा? R। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, साइन R क्या होगा बच्चों? AD बाई AC। अरे ये होगा ना, हाँ जो भी है, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्स नहीं दिखा रहे, तो ये लिखना है ऐसे में होगा। तो AD क्या है बच्चों आपका? V2T, क्या है? V2T अपॉन AC। ये क्या है बच्चों तुम्हारा? 1, और ये क्या मान लिया? 2। अरे मिटा दे इसको, या इधर लिख देना, 1 डिवाइड बाई 2 कर दो बच्चों। अरे 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका? V2 by V1 V1 बाई V2 होगा। अरे क्या होगा? V1 बाई V2। V1 क्या है बच्चों तुम्हारा? C बाई,
अरे सी बाई एन वन है ना बच्चों, और V2 क्या है? तो भाई ये CC कट जाएगा, क्या आ जाएगा ये N2 बाई N1 नहीं आ जाएगा? अरे साइन आई बाई साइन आर क्या आ जाएगा बच्चों? N2 बाई, अरे ऐसा सोच लो भाई, स्पीड जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर V1 बाई V2 आ रहा है तो अगर N1 N2 रखोगे तो उल्टा आ जाएगा। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बच्चों? N1 sin i इक्वल टू N1 sin i इक्वल टू, अच्छा कोई बच्चा बता सकता है उसको 20 रुपए देना कि ये आपका जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, किसकी वजह से हो रहा है? इसी क्वेश्चन में राज छुपा हुआ है। इस इक्वेशन से कैसे समझा है? जो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं है। देखो हाँ सर आपका N2 और N1 डिफरेंट है तो फिर sin i अपॉन sin r कभी भी बन नहीं आ सकता उस चक्कर में। जो दिमाग में रेशियो वो गलत है। हम ये तुम सही कह रहे हो, अरे तुम सही कह रहे हो, जो मैं सोच रहा था वो देखो। हाँ नहीं सोच नहीं, ऐसे सोच सकते हो ना, जो सही एक्सप्लेनेशन है सोचो। देखो मैं नहीं कह रहा तुम गलत कह रहे हो, पर अगर किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करोगे? ये सोचो, अगर मान लो बच्चों सेम मीडियम होता, मान लो दोनों में स्पीड क्या होती? सेम होती, तो लाइट क्या होती बच्चों? सीधी निकल जाती। मतलब I इक्वल टू क्या होता? R होता। हाँ लाइट क्या होती बच्चों? सीधी निकल जाती, ठीक है ना। सीधी कब निकलती? जब मीडियम क्या होता? सेम होता। और ये मीडियम सेम होता तो क्या होता बच्चों? N1 इक्वल टू क्या आता? N2। वही तो बोल रहा रेशियो अलग आ रहा है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं, तो N1 इक्वल टू क्या बच्चों? देखो sin i बाई sin r, यहाँ पर देखो बच्चों क्या आ रहा है तुम्हारा? V1 बाई V2 आ रहा है। अरे क्या आ रहा है? V1 बाई V2। अरे N1 बाई N2 तो बाद में आया था ना। अगर स्पीड सेम होती मीडियम में, दोनों मीडियम में, तो क्या होता बच्चों? sin i इक्वल टू sin r आता, और रे क्या होती? सीधी निकल जाती। sin i इक्वल टू sin r आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि स्पीड क्या है बच्चों? अलग है। तो रिफ्रैक्शन हो किस लिए रहा है? स्पीड क्यों है? उससे अलग था ना थोड़ा थोड़ा। मेरे पास टॉफी एक अरे ठीक है। देखो अब इस तरीके से फायदा क्या हुआ? अगर मेरे तरीके यूज करोगे, दोनों में साइन आई और साइन आर में यूज किया था ना मैंने, अगर रिफ्लेक्शन वाले में भी यूज किया था और इसमें भी यूज किया था, ठीक है ना, वही याद करो, दोनों में काम देगा। अरे ठीक है, अरे लिख लो भाई, समझ में आ गया? अरे आ गया समझ बच्चों? लिख लो जल्दी से। अरे इसको लिख लो भाई, फोटो खींच रहा है वो, ऐसे ही आदमी चाहे डायग्राम का नंबर मिले। अरे लिख लिया भाई? ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ डाउट है? समझ में आ गया ना? किसी को डाउट है भाई? ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक पूछूंगा मैं अगर टेस्ट में, हाँ क्लास खत्म। आज मेरा टाइम तो खत्म।
क्या